اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال تو ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور پھر اس پر زوردار بارش ہو، سخت اور صاف پتھر کی طرح کر کے چھوڑ دے، سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے روز 3 افراد کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اس میں پہلا شخص جو ہوگا وہ شہید ہوگا۔ اللہ رب العزت اسے دنیا میں جو نعمتیں دی گئی ہیں اسے گنوائے گا۔ شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے جو تمہیں نعمتیں دیں تم نے اس کے مقابل کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جان کو قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے جان اس وجہ سے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر اور شہید کہیں، تو شہید کہلا چکا، فرشتوں اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اس شخص کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر دوسرا شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جو قاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی جو دنیا میں نعمتیں دی تھیں وہ گنوائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، تم نے ان نعمتوں کے مقابل میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے علم سیکھا اور سکھایا اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ تم قاری کہلاؤ۔ تو قاری تم دنیا میں کہلا چکے، فرشتوں اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اسے بھی گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی جو دنیا میں نعمتیں دی گئی تھیں یاد دلوائے گا، اور پھر وہ سخی ان نعمتوں کے حاصل ہونے کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو نعمتیں دی تھی میں نے، تم نے اس کے مقابل کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے ساری دولت تیرے مخلوق پر لٹا دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں سخی کہلا چکا، فرشتوں اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے بھائی، میرے بہنوں اور میرے دوستوں، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، کچھ حصہ سورہ بقرہ کا، اور ایک حدیث شریف پڑھی۔ اور سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اور جتنے بھی نیک اعمال کریں گے وہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں دکھاوے پن سے ہمیشہ ہمیشہ دور رکھے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہم اس دکھاوے پن سے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یا نام کمانے کے لیے یا شہرت کمانے کے لیے ہم کبھی بھی نیک اعمال نہ کریں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے لیے جو ہے ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے دکھاوے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اکثر و بیشتر شاید آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن میرا تو ایکسپیرینس ہے، اور میں نے ایسی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، مخلوق خدا کو تکلیف دیتا ہو اور برے اعمال کرتا ہو، پھر اللہ رب العزت کا اس پر کرم ہو جائے، اسے کوئی نیک صحبت مل جائے، اسے کوئی اللہ کا ولی مل جائے، اسے کوئی عالم دین مل جائے، اسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کی دینی تربیت کرنا شروع کر دے، اور اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے،
और वो अल्लाह के ज़िक्र में लग जाए, नेक अमल करने लगे। या आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, और मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखा है जो इंतहाई बुरे फ़ेल में, इंतहाई बुरे कामों में मुलव्विस थे। ऐसे लोग भी थे जो शराब पिया करते थे, जो सुबह शाम शराब के नशे में धुत लेते थे, जिनके हाथों में शराब की बोतलें हुआ करती थी। ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद होंगे जो पहले चर्स पिया करते थे, गलत काम किया करते थे, गुनाहों के काम किया करते थे, हराम काम किया करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर करम कर दिया, वो राह रास्त पे आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे लोगों को हिदायत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत अता फरमाए, और वो नेक काम करने लगे, वो गुनाहों से बचने लगे, और वो नेक अमाल करने लगे। फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जिसे सुनकर मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है। मसलन कोई शख्स नेक बन गया, कोई शख्स नेक अमाल कर रहा है, सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, चैरिटी की काम कर रहा है, या कोई दीनी तरबियत कर रहा है, ज़िक्र व अस्कार की तालीम दे रहा है, रूहानी तरबियत कर रहा है, तो कुछ हसद करने वाले लोग ऐसे भी होते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा आपको बुरी नज़र से देखते हैं और फिर अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं कि देखो ये शख्स हाथ में तस्बीह लिए घूम रहा है, ये शख्स हाथ में काउंटर लिए घूम रहा है। ये सब कुछ पता है किस लिए कर रहा है? दिखावे के लिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इसे नेक समझें। क्यों? क्योंकि लोग इसे अच्छा समझें। क्यों? क्योंकि लोग इसे इबादत गुजार समझें। बगैर ये जाने और बगैर ये समझे, इस बात का उनको पता भी नहीं है कि उस शख्स के दिल में क्या चल रहा है। कभी कभी लोग ऐसी बातें करने लगते हैं जैसा गुमान होता है कि जैसे ये दिलों का हाल जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं और हमें इन कामों से बचना है। अगर कोई इंसान नेक अमल कर रहा है, तस्बीह उसने हाथ में ले ली है, काउंटर उसने हाथ में ले लिया है, तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अपने दिल का हाल तो पता नहीं होता है लोगों के दिलों का हाल बता रहे होते हैं। लोगों के थॉट्स जो उनके ब्रेन में चल रहे हैं उसके बारे में इज़हार ख्याल कर रहे होते हैं। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, शायद आपने भी देखा हो, जिनके हाथों में शराब की बोतलें हुआ करती थी, जिनके हाथों में चर्स हुआ करती थी, जिनके हाथों में नशा हुआ करता था। और भी इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग होंगे जिनके हाथों में लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया हुआ करती होंगी, लेकिन आज उन्हीं हाथों में न चर्स रही, उन्हीं हाथों में न शराब रही, न उन्हीं हाथों में कोई ऐसी चीज़ रही जिससे वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हिदायत अता फरमा दी। जिन हाथों में शराब हुआ करती थी, चर्स हुआ करती थी, नशा हुआ करता था, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हुआ करती थी, आज उन्हीं हाथों में तस्बीह आ गई है। आज उन्हीं हाथों में काउंटर आ गया है जिस पर वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा उन पर करम फरमा दी, ज़िंदगी बदल गई। कई मर्तबा मेरे सामने कभी कोई गलती से भी अगर कोई ऐसी बात कर देता है किसी के लिए, तो मैं फ़ौरन टोक देता हूँ और मुझसे पूछता हूँ और मुझसे कहता हूँ कि माशाअल्लाह आप तो साहिब इल्म हो गए, आपको तो दिल का हाल पता चलने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके पास तो इतना इल्म आ गया है कि कोई बंदा अगर तस्बीह हाथ में लिए हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की तलाश के सफ़र में निकला हुआ है, अल्लाह से उसने दोस्ती कर ली है, वो तो जिक्र में लगा हुआ है, और आप ख्याल पढ़ रहे हैं कि वो दिखावे के लिए कर रहा है। अगर आप इतने ही साहिब इल्म हैं, इतने ही साहिब करामत हो गए कि लोगों के ख्यालात पढ़ने लगे हैं, लोगों के जज्बात समझने लगे हैं, कौन किस मकसद के लिए क्या कर रहा है वो जानने लगे हैं, तो यहाँ क्यों तशरीफ़ फरमा हैं? बाहर आइए और अपनी इन सलाहियतों को लोगों को दिखाइए, और जब ये सलाहियतें लोग देखें, आपके करीब आएँ, तो उन्हें ज़िक्र अल्लाह में लगाइए, अल्लाह के ज़िक्र में लगाइए, उनकी तालीम व तरबियत कीजिए। यहाँ होटल में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? एक दफ़ा कर दी थी मैंने एक साहब से, तो सर झुका लिया। फिर मैंने थोड़ी सी उनको तालीम दी और उनको बताया कि तुम ये क्या कर रहे हो,
क्यों लोगों की बुराइयां कर रहे हो? क्यों लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हो? सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें उस शख्स की शख्सियत पसंद नहीं, या इस वजह से कि अल्लाह ने उसे शोहरत दे दी है, या इस वजह से कि उसके पास इल्म आ गया है, तुम्हारे पास नहीं आया है। ऐसा काम मत करो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या किस मकसद के लिए कर रहा है, ये अल्लाह बेहतर जानता है या उसका बंदा बेहतर जानता है। तुम अपनी फ़िक्र करो कि तुम कौन सा काम किस लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए या लोगों के दिखावे के लिए। अपने नफ्स की इस्लाह में लगो, लोगों पर नुक्ताचीनी ना करो। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो इस तरह की बातों से मुतासिर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को का दिल छोटा हो जाता है और फिर वो अपनी तस्बीहात को छुपा लेते हैं, हाथों से काउंटर को उतार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की बातों से मुतासिर नहीं होना चाहिए, अपना जिक्र करते रहें आप। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तस्बीह पकड़ना और काउंटर को अपने हाथों में रखना ये एक मजबूरी बन जाता है इंसान की। आप अपना काम करते रहें। अब जिस तरह से मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे इस वक्त मेरे करीब में बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ में गाना चल रहा है, और हो सकता है कि आपको शायद आवाज़ आ भी रही हो, अचानक से आना शुरू हो गई हो, या नहीं आए आपको, इस बारे में तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता। तो जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से मैं अपने काम को तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो अपने काम को जारी रखना है। तो कई मरतबा ऐसा भी होता है कि पीर व मुर्शिद आपको कोई तालीम व तलकीन कर देते हैं। किसी बुज़ुर्ग ने आपको कह दिया कि ये फ़लाँ चीज़ है और ये आपने इतनी हज़ार मरतबा पढ़नी है, या आपने ख़ुद ही सोच लिया कि मैंने 15 दिन के अंदर 1.25 लाख मरतबा फ़लाँ आयत पढ़नी है, या कोई सूरत पढ़नी है, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों में से कोई इस्म पढ़ना है, या इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है, दुरूद पाक मुझे कसरत से पढ़ना है, और आपने कोई तादाद मुकर्रर की भी अपने लिए कि मैंने पूरे दिन में इस तादाद में पढ़ना है। तो सोचने की बात यह है कि जो तादाद मुकर्रर की भी है वो तादाद काउंट किस तरह से होगी, वो या तो तस्बीह पे होगी या काउंटर पे होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे यहाँ जो कसरत ज़िक्र करते हैं। तो कसरत ज़िक्र जो लोग करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कसरत से करते हैं, या बहुत सारे लोग होंगे जो रूहानी सलासिल से वाबस्ता हैं, उनके शेख, उनके शयूख, उनके पीर व मुर्शिद, उनके शेख जो हैं वो उनको रूहानी सबक दे देते हैं, कुछ पढ़ने का बता देते हैं जो ज़्यादा तादाद में होता है, तो फिर वो उसे भी काउंटर पे पढ़ते होंगे। तो काउंटर पे पढ़ना फिर उनकी मजबूरी भी बन जाता है, वो काउंट किस तरह से करेंगे। अब एक शख्स है, उसके मुर्शिद ने उसको कोई सबक दे दिया, या एक शख्स है उसने सोचा कि आज मैं 5000 मरतबा, 7000 मरतबा, 10,000 मरतबा, 4000 मरतबा मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ूँगा, दुरूद पाक पढ़ूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों में से कोई इस्म पढ़ूँगा, और वो अपने हाथों में काउंटर लिया हुआ है, वो अपने हाथों में तस्बीह लिया हुआ है, और कोई इंसान ये कहे कि देखो ये दिखावे के लिए तस्बीह लिया हुआ है। मैं जानता हूँ इसको, मैं जानता हूँ इसके माजी को, मुझे पता है पहले क्या करता था, अब तो ये दिखावे के लिए कर रहा है। और जो इंसान ज़िक्र कर रहा है अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की याद में, उस इंसान के कानों में ये आवाज़ पहुंच जाए तो उसे कितना दुख और कितनी तकलीफ़ होती होगी। बाज़ मरतबा हम अपने अल्फाजों से, अपनी बातों से किसी का दिल दुखा देते हैं। इसलिए मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मुझसे जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मुझसे जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं, या जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, या जितने लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको तो ख़ास तौर पर हिदायत करता हूँ कि किसी के बारे में भी कोई ऐसी बात ना करो। बल्कि अगर किसी के हाथ में तस्बीह देखो कि पहले उसके हाथ में तस्बीह नहीं थी, पहले उसके हाथ में काउंटर नहीं था, तो उसके दिल में क्या चल रहा है उसकी परवाह ना करो, लेकिन उसे एप्रिशिएट ज़रूर करो कि माशाअल्लाह तुम्हारे हाथ में तस्बीह आ गई। अल्लाह पाक तुम्हें भी और हमें भी कसरत के साथ जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, किसी के ऊपर कमेंट्स ना करो, किसी के बारे में बुरा ना कहो, और इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश आप ना करो कि वो दिखावे के लिए कर रहा है या फिर वो हकीकी तौर पर अल्लाह की याद में अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तस्बीह लेकर या काउंटर लेकर। इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है, इस तरह की बातों से आप लोगों ने बचना है। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, हमें नहीं पता कि कौन कितना अल्लाह के करीब है।
میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے اس روحانی سفر میں، اپنی زندگی میں، جو 2 دن پہلے کچھ اور تھے اور 2 دن بعد ان کا حلیہ بھی بدل گیا، ان کی باتیں بھی بدل گئیں۔ وہ عبادت کرنے والوں میں سے ہو گئے، وہ ریاضت کرنے والوں میں سے ہو گئے، وہ کثرت ذکر کرنے والوں میں سے بن گئے۔ ایسی ان کو صحبتیں حاصل ہوئیں۔ کبھی زندگی رہی تو میں اپنی جب اسپریچول جرنی مکمل طور پر بیان کرنا شروع کروں گا تو میں اس میں آپ کو یہ واقعات سناؤں گا، اور یہ وہ سچے واقعات ہیں جن کو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ بھی تسبیحات ہاتھ میں لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور کاؤنٹر ہاتھ میں لے کر ذکر کرتے ہیں، اور اگر آپ کو بھی کبھی ایسا کچھ سننے کو مل رہا ہو تو اس طرف توجہ مت دیا کریں۔ آپ اپنے ذکر کی طرف توجہ دیں، اپنے فکر کی طرف توجہ دیں، اللہ کی یاد میں لگے رہیں اور کثرت ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں، یا اللہ تو ہمیں اور مزید ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر آپ روحانی سفر میں چل رہے ہیں تو اپنے سفر کو جاری رکھیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور اس طرح کے کلام سے، اس طرح کی باتوں سے مکمل طور پر بچ کے رہیں۔ کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں ایسا۔ کون تسبیح ہاتھ میں رکھا ہوا ہے دکھاوے کے لیے، کاؤنٹر اس نے ہاتھ میں لے لیا دکھاوے کے لیے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، یا نیک اعمال کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، یہ آپ نہیں جانتے، یہ وہ جانتا ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اگر کوئی دکھاوے کے لیے نیک عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ کی محبت میں سب کچھ اپنا قربان کر رہا ہے، اللہ کی محبت میں ذکر الہی میں لگا ہوا ہے، اللہ کی محبت میں نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، اور آپ غلطی سے اس کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دیں تو آپ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اچھی طرح سے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔